یہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر صدر مملکت نے آج مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا ہے، تو آپ نے اس احتجاجی دھرنے کا اہتمام کیوں کیا؟ دیکھیں، یہ موقع یہی تھا کہ ہم پی ڈی ایم جو ہے گورنمنٹ پر ضد ہے کہ وہ پی ڈی ایم لائے، اور میرے خیال میں پی ڈی ایم کا مطلب ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل، دوسری پی ڈی ایم نہیں، پی ڈی ایم ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخصی آزادی بھی چھیننے، بولنے کی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا فریڈم تو ویسے بھی چھین چکی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا، صدر مملکت جو ہے عارف الوی صاحب جو ہے وہ خود اس سے خطاب کر رہے تھے، یہ موقع صرف ان کو ریئلائز کرنا تھا۔ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، آپ نے دیکھا امیر صاحب کو آ کے وزٹ بھی انہوں نے کیا ہے، یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ادھر موجود ہیں ہمارے درمیان۔ ان کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ یہ آپ ایک کالا قانون لا رہے ہیں جو میرے خیال میں ایک ایسا مارشل لا لگانے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے۔ بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے، اس کو لائرز کی تنظیموں نے اور میڈیا کی تنظیموں نے میڈیا مارشل لا قرار دیا ہے، لیکن پاکستان میں تو جمہوریت ہے، تو کیا آپ لائرز کی تنظیموں اور میڈیا کی تنظیموں کی اس ٹرم سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ پاکستان میں میڈیا پر مارشل لا نافذ کرے گا؟ حامد میر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں پورا جو صحافی کمیونٹی ہے آپ سب کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ دیا ہے، اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک یہ قانون ہے، یہ ایک کالا قانون ہے، مگر یہ پہلا کالا قانون نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آمر آتا ہے، جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے، تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ان کا یہی کوشش ہے، لیکن ماضی کی طرح جیسے ہم نے مل کے ایوب خان کے کالا قانون کو ختم کیا تھا، جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے، ان کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہوئے سارے ختم کیے تھے، اور جیسے ہم نے مل کے مشرف کے جو بھی پابندیاں تھے، صدر زرداری جیسے ہی صدر بنے، ہم نے وہ سارے پابندیوں کو، سارے کانے قانون کو ایک ایک کر کے اپنے قانون سے، اپنا آئین سے صاف کیا تھا 18ویں ترمیم کی صورت میں۔ آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ قانون جو بننے والا ہے، یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے، مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے۔ آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے، یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے، معاشی حملہ ہے، جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے، اتنا بڑا فائنینشل برڈن ڈال کے معاشی قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آپ کی تنظیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں جہاں آپ احتجاج کا کال دیں گے، وہاں شہید بھٹو اور شہید بی بی کے جیالے آپ کے شانے بشانے کھڑے رہیں گے۔ اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پی ایم ڈی اے کا جو پروپوز لا ہے، اس کو پہلے ایک آرڈیننس کی شکل میں لانے کی کوشش ہوئی، اس آرڈیننس کے ڈرافٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا، اب حکومت کہتی ہے کہ اس آرڈیننس کے ڈرافٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ تو کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا، کیا بینگ
वेरी प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर, कोई ड्राफ्ट आपके सामने आया अभी तक? जो ड्राफ्ट हमारे सामने आए हैं वो जो ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में कौम के पीछे निकाला गया वही ड्राफ्ट है। कोई हमारे साथ ऐसा कोई बातचीत नहीं किया गया है, ना ये कोशिश किया गया है कि हमारा एतराज़ात दूर करें, आपके एतराज़ात दूर करें। ऐसे लग रहा है कि वो बुलडोज करना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती ये कानून पास करवाना चाह रहे हैं। मगर अगर वो खजाना खास्ता होता है तो इंशाल्लाह ताला हमारा पीपल्स लेबर फॉर जो है ब्यूरो जो है और लतीफ़ खोसा साहब आपके साथ मिलके इंशाल्लाह ताला अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके इत्तला के मुताबिक आपके ख्याल में हुकूमत नेशनल असम्बली से इस बिल को पास करवा सकती है, लेकिन सेनेट में फिर क्या होगा? हमारा जो शक है वो ये है कि हमारा मेजॉरिटी इसको साइड स्टेप करवाने के लिए वो जॉइंट सेशन से पास करवाना चाह रहे हैं। अगर ये जॉइंट सेशन नहीं तो वो दूसरा जॉइंट सेशन बुला के अपना ब्रूट फोर्स से कोई तफसीली डिबेट के बगैर दोनों हाउसेस से जो प्रोसेस है वो फॉलो किया बगैर पास कराना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमारा शक है, कोई सबूत अभी तक हमारे पास। अच्छा, ये बताएं कि आज प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करना है, तो अभी आप जाएंगे पार्लियामेंट हाउस में, तो वहाँ पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? हमारा पार्टी ने ये फैसला किया है कि हमारे 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस सेशन में एहतजाज करेंगे। एक जो ये आज़ादी सहाफ़त पर, आज़ार ख्याल पर हमले कर रहे हैं, और दूसरा जो वो हक़ रोज़गार पे डाका मार रहे हैं। इसलिए वो आपके हक़ रोज़गार पे भी डाका मार के आगे चले हैं, और 20,000 ऐसे ख़ानदान हैं जो एक नाजायज़ अदालती फ़ैसला की वजह से बिल्कुल आपके साथ साथ एहतजाज कर रहे हैं। तो इन 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस हुकूमत के इस सेशन में एहतजाज करके अपना पॉइंट नोट भी करेंगे। ये जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है रिसेंट पास्ट में, क्या इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां दी गई थी? सर, ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जब भी हुकूमत में आते हैं वो रोज़गार दिलवाती है। तो पाकिस्तान में जिनको रोज़गार मिला है ज़्यादातर वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको रोज़गार दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा सियासी कारकुन है। जब आप नौकरी पेशा हो जाते हो, आपका सियासी ताल्लुक भी ख़त्म हो जाते हैं। और इन सारे लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है कि पहली बार नहीं दूसरी दफ़ा हुआ है। पहली 90s के दौर में इनको रोज़गार से निकाला गया, तब वो 30 साल के थे, फिर उनको बहाल किया गया, एक बार फिर उनको नौकरी से निकाला गया, अब वो 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कौन आदमी जो 50 साल का हो जाता है एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं? वो इस मुआशी बहरान में जब सब मान रहे हैं कि महंगाई इंतहा पे है, बेरोजगारी गुर्बत तारीखी सतह पे है, इस किस्म का जुल्म करने का तुक क्या बनता? अगर हम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर सकते थे तो इसी पार्लियामान ने उन 20,000 खानदानों को बहाल किया है। उनके हक़ रोज़गार पे, आपके हक़ रोज़गार पे हम ये हुकूमत को डाका मारना नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कुछ दिन पहले आपने नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग की थी। उसमें बहुत से जो सहाफ़ी हैं आपने उनकी बात सुनी थी जिन पर रिसेंट पास्ट में हमले हुए थे। उसमें असद तूर साहब भी थे, मतीउल्लाह जान साहब भी थे, उसमें अबसार आलम साहब भी आए, आसमा शराजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बात की। उस मीटिंग में आपको पुलिस की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सी एश्योरेंसेस करवाई गई थी। कुछ हमें उसके बारे में आप बताएंगे कि फॉलोअप उसका क्या है? सारे जो फॉलो अप हुए हैं, एक मज़ीद इंफॉर्मेशन कमेटी में भी मीटिंग हुआ है, हमारे सब कमेटीज़ में भी इंटरेक्शंस हुए हैं, और मैं इतना कह सकता हूँ कि अनसेटिस्फैक्ट्री है वो इसलिए कि जिनके खिलाफ
ये हमले हुए थे वो मुतमिन नहीं है, तो जब तक वो मुतमिन नहीं होंगे हम मुतमिन नहीं हो सकते हैं। हमने उस मीटिंग में और एक ख़त भी लिखा था एक इदारे को, और हमने अपना ख़त और अपना एतराज़ात वहाँ पहुँचाए थे। बिलावल साहब, जब आप पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, ये इस प्रपोज लॉ पर आप तनकीद करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं वो काउंटर क्रिटिसिज्म में ये कहते हैं जी कि सिंध में भी सहाफ़ियों के लिए हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पर भी बड़े हमले होते हैं, तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई एक सूबा नहीं है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ सहाफ़त करना इस मुल्क में मुश्किल नहीं है। मैं सिंध की हद तक इतना कह सकता हूँ कि जो जुल्म होता है या होगा वहाँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़े हैं, वहाँ भी हम मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। जो भी हमारे बस की बात है उनकी मदद करने में, उनके साथ देने में हम करने को तैयार हैं, मगर हमें सब मिलके इस पूरे मुल्क में जो भी सहाफ़ियों के साथ जुल्म और ज़्यादती होता है इनको रोकना चाहिए। और सिंध में जो हमारा रीजनल सहाफ़ी हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, और उनका जो भी एक इंसिडेंट होता है वो मुल्क और कौम के सामने लेकर भी आते हैं। यहाँ पर आपके आने से पहले बात हुई थी, जो हमारे RIUJ के ये धरना एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं अफजल भट्ट साहब, वो हमें रिमाइंड करवा रहे थे कि 2007 में 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हमारे धरने में तशरीफ़ लाई थी। उसके बाद से मैंने देखा कि आप पिछले साल भी आप आए थे, हमारा इसी जगह पे धरने में आए थे, आज आप फिर आए हैं। तो ये जो एक ट्रेडिशन है, आप क्या समझते हैं कि इस पर आप पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये मैं आपसे ये सवाल ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से कर रहा हूँ, आप मीडिया फ्रीडम और जो दीगर पाकिस्तान में इस वक्त लॉयर्स कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं उस पर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहद कर सकते हैं? आई थिंक कि जहाँ तक ये मीडिया की बात है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही स्टांस है, और जहाँ तक दूसरे इश्यूज़ हैं, हमें सारे इश्यूज़ जो मुल्क और कौम के फ़ायदे में हैं उन पे जॉइंट ही प्रपोजल रखना चाहिए। और हमारा जो पार्लिमानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो शहबाज शरीफ साहब है, और वक्तन फ़वक्तन वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं इशू टू इशू। शहबाज शरीफ साहब से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे तो सारी अपोजिशन जमातों के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात है। आपने क्या सुना? मैंने सुना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से कुछ ताल्लुकात आपके पहले अच्छे थे, आप नहीं हैं? मैं मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अब ना सिर्फ ये हमारा एक नस्ल का नहीं, मुसलसल हमारे बड़ों के साथ भी थे, और इंशाल्लाह और आने वाले नस्ल के साथ करेंगे। सियासत में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये तो होता रहता है, लेकिन मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है मौलाना। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।